Hello, everyone, and welcome back to another episode of Raw and Real with Samya. आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. देर आर टू टॉपिक्स जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है. एक है बच्चे और दूसरा जानवर, मासूम जानवर, बेजुबान जानवर. आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन I will record a podcast about cruelty to animals as well, which it just really ये दो ऐसे topics हैं, मासूम छोटे बच्चे और बेजुबान जानवर, कि जब जब इनके ऊपर जुल्म होता है ना, या जब कोई ऐसी स्टोरीज़ कहानियाँ बाहर आती हैं जो कि इन दो से रिलेटेड होती हैं. ऐसा नहीं कि जो अडल्ट के साथ होता है अगर जुल्म होता है तो वो इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके. बट यू नो व्हेन यू आर यंग इनोसेंट चिल्ड्रन, जब उनकी इनोसेंस उनसे छीनी जाती है, जब बेज़ुबान जानवरों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, तो मेरा दिल काम जाता है. और मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि क्या दिल रखते होंगे, किस दिल से, किस जिगर से कोई इंसान इतना इतना जालिम हो सकता है कि यू नो किसी किसी के ऊपर इतना जुल्म करे. तो आज बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ. और ऐसा है कि सो बेसिकली इसकी सोच मुझे ऐसे आई, इट्स बिकॉज रिसेंटली खबरों में कुछ आया, यू नो ऐसी न्यूज़ आई, ऑफ कोर्स दैट ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. A lot of thought process gets triggered by the current affairs, and unfortunately in the current affairs these days एक तो न्यूज़ आई एक नर्स की जो कि she's murdered a serial baby killer, and she murdered 7 newborn babies. She just got life imprisonment for that. And I think there were 6 more she was going to or couldn't or something like that. एक वो स्टोरी थी. फिर एक स्टोरी आई जो कि पाकिस्तान से 2-3 माइनर बच्चियों के साथ जो है कुछ जुल्म हुए, और ख़ास तौर पे एक बच्ची जो कि जहाँ बहक हो गई. शी डाइड, a 10-year-old minor girl who was not molested but raped by this man, supposedly from a religious family. पीरों की फैमिली में से हैं वो. और he violated that girl, and he raped that little 10-year-old. और उसके बाद काफ़ी abuse वगैरह के signs, and the girl has lost her life. She died. Maybe better for her, and I'm saying this with a heavy heart, because she would have had to live with that trauma for the rest of her life. So I'm saying it from that perspective. तो मैं जब ये न्यूज़ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे हमेशा बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आता है, और फिर मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचती हूँ. बल्कि अभी आज earlier today I had a little bit of a I asked a question on my social media platform, asking people about what scares them about raising children, and I'm going to share their answers with you. I actually thought of inviting a few parents, lekin some were not available, and some people just are not comfortable on camera. They don't want to talk on camera. They don't want to be exposed on camera. People feel comfortable being behind their computer screens, their laptop screens, and just stating their opinion from on a keyboard. I think a lot of people prefer that. Not everyone is comfortable being in front of the camera, and which is fine. It's understandable. I completely get it. लेकिन बहुत सारी opinions आई जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी. लेकिन उससे पहले मैं कुछ 2-4 बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ. As far as I was actually very surprised. So when I asked this question, that what scares you about raising your children these days, it's not about raising your children here in the US or anywhere else in the world or back home or anything. No, just period. What scares you about raising your children? और जितने भी जवाब आए हैं उसमें I don't know how I feel about this, कि child molestation is not mentioned anywhere by any parent. And I want to address that. I want to start by addressing that. God forbid, Allah na kare, it can happen to anyone out there. It has nothing to do with, oh,
It's the poor people, it's the village people, it's the illiterate people or anything like that. ऐसा नहीं होता. Child abuse, child molestation, this is all so common, and it can happen to the best of the best. By the best, what I'm trying to say is the elitist of the elitist people. It can happen in your families. The other thing is that I'm sure a lot of people don't understand this. Ke child abuse is not something that happens, the strangers. They're not going to come into your homes. अक्सर हम बच्चों को यही सिखाते हैं ना. सॉरी यार, I know I'm playing a lot with my eyes right now. I feel like कुछ चला गया जैसे आंखों में ना. कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि यार स्ट्रेंजर से बात नहीं करो, स्ट्रेंजर्स का बैड टच गुड टच. स्ट्रेंजर की हिम्मत नहीं होती. ये जो हरकत होती है ना चाइल्ड मोलेस्टेशन की, मैं इस वक्त चाइल्ड अब्यूज़ चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रही हूँ, मैं ऑन सेक्सुअल नोट बात कर रही हूँ, सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रही हूँ. इसकी हिम्मत सिर्फ आपके करीबी लोग करते हैं. ये बात स्टेटिस्टिक्स में है, ये बात कंफर्म्ड है, ये बात फैक्ट है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, आपके बच्चों के साथ कोई गलत काम होता है या ज़्यादती होती है, वो हमेशा आपके करीब के लोग होते हैं जिनके पास एक्सेस होता है, जिन पे बच्चा भरोसा करता है, जिनको कहा जाता है कि इन पे भरोसा करो. बच्चों ये तो आपके चचा हैं, ये मामू हैं, ये अंकल हैं, ये फैमिली फ्रेंड है, ये अब्बू के दोस्त हैं, ये भाई का दोस्त है, ये कज़न है. नो, दीज आर द पीपल, दीज आर द पीपल. ऑफ कोर्स ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ये लोग जो होते हैं या सारे रिश्ते बुरे होते हैं. नो, मगर ये होता है. इट इज़ अ फैक्ट कि एक बच्ची को या बच्चे को, आजकल आप जानते हैं कि हम जिस दुनिया में, जिस ज़माने में रहते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लाइक अ बच्चा और अ बच्ची. आप लड़का हो या लड़की, either way they can be, god forbid, abused, sexually abused by any of the family members. And you just have to teach, प्लीज़ अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी के साथ इतना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है माँ बाप के सिवा. उठा के बच्चों को गोद में बिठा लेना, डिफरेंट तरीके से बच्चों को हाथ लगाना, उनको अनकंफर्टेबल करना, और फिर आपने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन भी नहीं बिल्ड की होती है कि वो बच्चे आके आपको बता सकें दैट समवन जस्ट टच्ड मी इन अ रॉन्ग वे. इट जस्ट, मेरा ना, मैं जब ये सुनती हूँ, मैं जब पढ़ती हूँ, मैं जब बातें किसी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं चीखे मार के रोऊं कि हाउ कम यू वर नॉट, हाउ oblivious are these parents, how oblivious are they that they're not willing to listen, to understand and to comprehend, because they feel कि नहीं चुप कर जाओ तुम, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारी फैमिली में तो हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चों के साथ तो हो ही नहीं सकता. Do you realize what you make your child feel when you do not trust them when they come and tell you? Is this something आपको लगता है कि ऐसी कोई सोच एक बच्चा जो है वो सोच सकता है, और सोच के जो है वो लाइक दे कैन जस्ट मेक इट अप एंड जस्ट कम एंड टेल यू? क्यों झूठ बोलेगा एक बच्चा आके आपसे? क्यों इस तरह की मन घड़त जो है वो कहानी बनाएगा? क्यों? एक बच्चे के मासूम जहन होता है, उसमें कहाँ से कहानी आ जाएगी कि किसी ने उसको किसी तरह हाथ लगाया जो कि उसको नहीं अच्छा लगा? What makes you think कि आपका बच्चा इस तरह का इतना झूठ बोल रहा है? दैट मीन्स कि फिर आपने अपने बच्चे को गलत चीज़ों को एक्सपोज किया हुआ है, आपने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं की, अगर आपको ये लगता है कि आपका बेटा या बेटी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और इस चीज़ को वो अपनी कोई मन घड़त कहानी बना रहे हैं, then that the blame comes on you, the onus is on you. Why would you not trust your child coming and telling you something like this? Why would you think your child would make this shit up? Why? What makes you think that? If you feel like a failure and if you feel that you could not protect your child, don't take that out by denying what your child is telling you. Accept the fact, एक तो पता है क्या हमारे यहाँ ना, so there's a reaction to everything, a chain, it's like a domino effect. हमारे यहाँ के माँ बाप बहुत अजीम होते हैं, बहुत, मैं भी एक माँ हूँ, राइट, मैं भी एक माँ हूँ, बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किलात से गुजार आप एक ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है जिसको आप
बर्दाश्त करते हैं, अपने बच्चों के लिए इग्नोर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उनकी परवरिश में, उनको पैदा करने से लेकर उनकी परवरिश तक बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। तो माँ बाप ऑब्वियसली उनका एक दर्जा है, और उनका दर्जा यहाँ पे है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये भी मत भूलें कि माँ बाप भी तो इंसान हैं। माँ बाप भी वही आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम भी अब माँ बाप बने हुए ना, तो हम भी तो इंसान हैं। गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं, गलत फैसले तो हम भी लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज ओ हाँ हमारा एक्सपीरियंस होता है, हाँ हमें बेहतर पता होता है बच्चों से, बट वो तो एक चलता आ रहा है, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जी क्योंकि हम माँ बाप बन गए तो अब हमसे कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। We can be wrong. We can be wrong in making decisions, in taking decisions. We can be wrong in in raising our children. We can do that. गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है किसी माँ बाप से। हो सकता है आपका कोई फैसला आपके बच्चों के लिए गलत रहा, साबित रहा, क्यों नहीं। आप माँ बाप हैं, फरिश्ता नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सो आई डोंट नो, एक तो हमारे यहाँ ये चीज़ कह दी जाती है कि जी माँ बाप है तो कुछ गलत कर नहीं सकते हैं, माँ बाप है तो गलत सोच नहीं सकते अपने बच्चों के लिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के बच्चों के लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, लेकिन गलती हो सकती है। आपके कैलकुलेशन में, आपकी असेसमेंट में, आपके एक एनालिसिस में गलती हो सकती है, क्योंकि आप एक इंसान हैं। हो सकता है आपने एक चीज़ को सही समझ के अपनी औलाद के लिए उसको डिसाइड किया हो, लेकिन आपका वो फैसला गलत निकला। उस बात को अब इंसिस्ट करना कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, कि नहीं जी यही बात क्योंकि हम माँ बाप हैं हमारा फैसला तो सही होगा, एक वक्त में आके पता चलेगा सही होगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। तो अपने बच्चों को खुदा के लिए प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चों को खुदा के लिए स्पेशली अगर आप इनको किसी रिलीजियस एंड रिगार्डलेस विच एवर रिलीजन यू बिलीव इन, लेकिन अगर आप किसी रिलीजियस क्लरिक या स्कॉलर के पास भेजते हैं बच्चों को, तो प्लीज़ वॉच देम, सिट ओवर देयर विद देम, गर्ल्स और गाइज रिगार्डलेस ऑफ दैट। उसके अलावा आप ये देखें कि उधर जो अभी केस आया है उसका इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भावलपुर से, कि जो 5500 सेक्चुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस वगैरह मिले हैं वहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट इज़ दिस? वो जो एक 10 साल की बच्ची, उसकी न्यूज़ तो पढ़ें यार, जिसका रेप हुआ है। आई मीन शी वॉज वायलेटेड बोथ साइड्स, और मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्रंट एंड बैक शी वॉज रेप्ड बोथ वेज। 10 साल की बच्ची, और उस पे जो निशान मिले हैं उसकी बैक पे, उसकी आँख पे, उसकी गर्दन पे, उसके आर्म्स में, उस I don't know what to call that man, and I know it's YouTube and I can say whatever I want to say here, but um, क्या क्या बोल सकते हैं उस आदमी को कि एक मासूम बच्ची के साथ क्या क्या तुम्हें प्लेजर मिल रहा था? What? I really don't understand that. But coming back to staying focused on this point here, कि there is there is a hike of child pornography, बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है, और उसका ध्यान रखें अपने बच्चों के साथ। अपने लाइक आई सेड कि काफ़ी सारे लोगों ने जो उस बात का जवाब दिया मेरा कि व्हाट स्केयर्स देम अबाउट रेजिंग चिल्ड्रन दीज डेज, like I said, none of them said child molestation. None of them said that. They said some very valid points, but child molestation was not there. And I wonder why. Why? Because we constantly don't even think that it can happen to our children. But it can. It does. From people who are near and dear to you. From people who are close to you. Please protect your children. Please. Have this You'd rather educate your children. And I'm not telling them that explain to them about sex or, discuss Kama Sutra with them. I'm not telling you to do that. But explain to your children how, I get so passionate and then मुझे पसीना आने लग जाता है, मैं इतनी हो जाती हूँ जज्बाती. Explain to them that what's wrong, what's right, and tell them if something, God forbid, goes wrong with them, how they can come and tell you. कि वो आए आपके पास और आपको आके बताएं कि this person did this to me.
You must, and especially I want to say this to the women out there, कि especially माओ को, कि जब आपकी बच्चियां या आपके बच्चे आपको आके कुछ बताते हैं, अगर आप उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस देख रहे हो, खामोश हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, वो किसी अंकल से या किसी आंटी से मिलना नहीं चाहते, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं किसी की प्रेजेंस में, उनको अवॉइड करते हैं, नोटिस दीज लिटिल चेंजेस and then talk to your damn husband about it. Stop hiding things from your husband. Stop hiding things from the father of those children. ये हमारे यहाँ एक इतनी बुरी आदत है हमारे यहाँ इन औरतों में कि नहीं 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 नहीं, अब्बू को नहीं बताना, बाप को नहीं बताना, और उनको नहीं बताना, उनको गुस्सा करेंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे. बाप है वो बच्चों का. He needs to know. He needs to find out what's going on. He needs to be aware. Both of you together, parents, माँ बाप मिल के एक बच्चे की परवरिश करते हैं. बताओ बाप को कि क्या हुआ उसकी बेटी के साथ या उसके बाप के साथ. बताओ ताकि वो उस आदमी ये नहीं कि कोई जाके उसको कोई मार दे, कत्ल कर दे. नो, but for the father to be aware of what's going on in his child. अगर if he sees the child behaving differently, तो instead of कि वो सोचें कि वो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है, बदतमीज़ हो गया है, एटीट्यूड दे रही है, ये नो, he should understand what's wrong with the child. Why is the child behaving the way he or she is? And this onus is on women. I'm sorry, you women hide everything from the नहीं नहीं बाप को नहीं बताना, बाप को नहीं बताना, बाप को सक. अरे भाई, दोनों अडल्ट्स हो, बच्चा शादी कर सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो एक मामले को किस तरह से समझदारी से मिल के हैंडल करना है वो भी पता होना चाहिए. वरना मत किया करो ना शादियाँ. शादी is not just for you to have halal sex. You are going to make a family together and raise individuals जो कि आगे जाके बड़े होके इसी सोसाइटी का एक हिस्सा बनेंगे. तो आप आगे सोसाइटी को क्या दे रहे हो? Traumatized, toxic children? So, like I said, Kate, I'm trying to keep my monologues like really short these days, so I hope they make an impact. Because I know आजकल किसके पास टाइम है इतनी बातें सुनने का and all of that, right? So, and I think आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं अकेले बात कर रही हूँ, एक monologue कर रही हूँ, I'm not taking any takes over here and just going in one flow, because that's how passionately I feel about such causes. I'm going to go ahead and quickly go through my Facebook over here and tell you okay, what these people are talking about over here. So real quick, I want to tell you कि जितने भी लोगों से मैंने एक general question पूछा था कि what scares you the most about raising your children in today's day and age. So there are a lot of people who have commented and still commenting over here. I asked this earlier today, but I'll share a few replies with you, and then you can go to my Facebook and comment there yourself, or check it out yourself. Don't forget, you can always also comment on my on the comments below on my YouTube, and let me know कि आपकी क्या सोच है इस बारे में. आपको क्या लगता है किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है? अगर आपके बच्चे हैं तो आप किस चीज़ से आजकल डरते हैं कि आपको बच्चों की परवरिश में किस चीज़ से नुकसान पहुंच सकता है? ये दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. सो कुछ जवाब यहाँ पे कुछ लोगों ने फ़नी होने की कोशिश की, और कुछ लोग ये कि शूटिंग्स इन स्कूल. अनफॉर्चुनेटली अगर आप यूएस में नहीं रहते तो आप इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन यूएस में रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है. यहाँ पे स्कूल शूटिंग्स जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, और जिनके भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये कंसर्न होता है कि पता नहीं होता कि आपने सुबह बच्चों को स्कूल भेजा है तो वो स्कूल शूटिंग कहीं खुदा न ख्वास्ता कहीं हो ना जाए. और ये नहीं कि कोई वो अडल्ट करते हैं अब, बिकॉज स्पेशली टेक्सास में इसकी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज गन्स आर अलाउड. तो इट कुड बी देयर it could be a student who can just walk in because maybe he was being bullied, maybe he was having a bad day, maybe कोई घर में उसको डांट पिटी और whatever, और इस तरह से जो है वो गन लेके आ सकता है स्कूल में और वो शूटिंग कर सकता है. So school shootings is a big concern. For those who are watching me outside US, school shootings is a very big concern that parents have here.
And then and then some people are also talking about okay, what scares them most is the ability to change your gender. And because they watched a TV show, ये भी एक concern है because so यहाँ पे यूएस में आपकी सेक्स एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर अर्ली एजुकेशन। जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कौन सी ग्रेड में आपको सिखाया जाता है अबाउट द बॉडी, यू नो, एनाटमी एंड a basic sex education जो आपको दी जाती है। लेकिन अब सुनने में आया है that if a child goes and tells the teacher that oh, he or she identifies himself or herself as they, or even as a cat. In fact, somebody was telling me that they have cat litter in the schools these days. Someone told me that. I don't know, and I have not verified it, but I've heard that some school in Austin had a cat litter because there was a boy who said he identifies himself as a cat. So they put cat litter for him in the bathroom. Yeah, believe me. I know. उसके अलावा जो है, so some people are concerned about that. The whole LGBTQ movement, and that's probably religion based and culture based, of course. The whole gender based conversation, people are concerned about that as well. People are concerned, they're talking about the toxic society, people are talking about social media, people are also talking about, ये मैं अपने Facebook से पढ़ रही हूँ, तो इसलिए in case you are wondering what am I looking at, that's what I am looking at. So people are also concerned about, they're saying that how the society and the world is changing drastically. It's a crazy world out there. और ये कोई सिर्फ कोई पाकिस्तानी या Muslims नहीं है. There are people from all different ethnicities who are commenting over here in on my social media. Shootings, social media, toxic culture. The bottom line, the crux of this whole conversation, the gist of this podcast today is my humble request to all the parents out there. Please start building a bond and having a communication with your children. Please, that's all that you need to do. Your concerns and your fears are real and they're legit. Each one of these concerns that I listed, they're all there. They're all valid. Whether it's child molestation, whether it's the toxic culture, whether it's the it's your values, whether it's the narcissist personalities out there, whether it's the gender, the LGBTQ movement, whatever it may be, that concerns you, your parenting, your values, your morals. आपको जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है, आपको जो लगता है कि जो आपके fears हैं, these are, if any of this is your fear, you as a parent are right to have those fears. But what will help you in your parenting is having open communication with your children. Daughter, son, whatever that may be, whoever that may be. Talk to them. Make them comfortable. Let them know that no matter what, you know what? Let's say your child had alcohol or smoked, whatever, something that you don't approve of, right? I'm just giving an example. Now, instead of you finding out and slapping and hitting and getting abusive and all of that, doing all that, why don't you sit down? It doesn't hurt to try. बैठ के उनके साथ उनको समझा दें कि क्यों आपको लगता है कि आपको उनका सिगरेट पीना, शराब पीना, ये करना, कुछ भी जो भी आपको नहीं ठीक लगता, जो भी, मुझे नहीं पता आपको क्या ठीक लगता है और क्या नहीं, लेकिन जो भी ठीक नहीं लगता आप उनको समझा दें कि यार ये मत करो, और ये मत करो क्योंकि these are my reasons as your parent. I'm watching out for you. This is why I do not want you to indulge in these things, in these vices, or indulge in like I don't want you to do stuff like that. Explain it to them. When you explain it to them nicely, when you talk to them, tell them, uske baad be there for them. Tell them, look, we love you and we will be there for you always.
No matter what you do, we want you to come to us and tell us. If something's gone wrong, we will be there to protect you. Let your child have this confidence. Okay, you're there for your children. And that's when they'll start respecting you. देखिए, डर से रिस्पेक्ट नहीं होती है. आई थिंक हम सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि शायद हम बचपन में अपने पेरेंट्स की वाकई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, हम सिर्फ डरते थे और उसको रिस्पेक्ट समझते थे. अब समझ में आता है कि डर क्या होता है और रिस्पेक्ट क्या होता है. अब हम शायद रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अब डर नहीं लगता, बड़े हो गए, या शायद अभी भी लगता है कभी कभी, डिपेंड करता है. बट समझ रहे हैं आप इस बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. सो माई पॉइंट इज दैट डोर ऑफ कम्युनिकेशन, keep it open. And that's the only way you'll have that bond with your children. So then no matter what your child is going through, whether your child is being bullied in school, whether your child is the bully in the school, whether your child has gone through, God forbid, something unthinkable, or suffering from some depression, suffering from some peer pressure, and anything, they can come and tell you and you can guide them. ये नहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, रख के एक थप्पड़ और ये नहीं करे. आज का जो ज़माना है उसमें the last thing you would want is for your child to rebel against you. Don't let your child rebel against you. You know, keep them close to your heart by keeping that communication door open. Don't close it. अगर आप उनको सिर्फ मार, गालियाँ, धुतकारना ये सब करते रहेंगे, वो जो दरवाज़ा है ना, वो बंद क्या, ऐसी कुंडियाँ उसके ऊपर लग जाएंगी, वो ऐसे जुड़ जाएगा, वो कभी खुल नहीं पाएगा दोबारा. आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें. और फिर वो जो आपके बच्चे हैं ना, कहीं और जाके वेंट करना शुरू कर देंगे, गलत लोगों के साथ, गलत लोग जगहों पे वेंट करना शुरू करेंगे जहाँ से उनको अच्छी एडवाइस नहीं मिलेगी. समझ रहे हैं आप बात को? सो आई होप मेरी जो ये सिंसियर मेरी एक कोशिश है कि मैं एडवाइस नहीं दे रही हूँ आप लोगों को. मैं कौन होती हूँ एडवाइस देने वाली? ये मेरी सिर्फ एक सिंसियर कोशिश है कि जिनके भी बच्चे हैं उनके साथ आप एक कम्युनिकेशन डोर जो है वो खुला रखें, ताकि आपके बच्चों को कभी नुकसान ना आए, और अल्लाह ना करे कभी नुकसान पहुँचे अपनी गलतियों की वजह से या किसी और की वजह से, तो वो आके आपको बता सकें, ताकि उनको ये पता हो कि उनके पेरेंट्स हैं जो कि हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं. एंड वॉच आउट फॉर दोज मोलेस्टर्स. दे हैव अ वेरी, उनका बहुत एक इनोसेंट सा फेस होता है, और ये हमेशा वही लोग होते हैं दैट यू एक्सपेक्ट द लीस्ट फॉर देम टू बिहेव लाइक दैट. तो बहुत हैवी हो गई आज की बातचीत. इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त. Until the next show, this is Samia signing off. Bye-bye.